Hello. We are given with a question, and the question says a point source of heat of power P is placed at the center of spherical shell of mean radius R. The material of the shell has thermal conductivity A. If the temperature difference between the outer and inner shell of the shell does not exceed T, the thickness of the shell should not be less than what? Right? What amount of T should be there? Maximum, the minimum T, right? So we have two spherical shaped, right? These are two spherically shaped, and then we are finding that this is R. What is R is the main radius from the center to the, this is center, and this is R, and P is the power, right? So power can be written as K 4 pi r square into T upon T, that is thickness, right? Since here R equal to R1 plus R2 by 2. This is R1 and this is R2, right? So since P is this, T should be very much less than R so that the thickness would not be greater than the radius itself, right? So the minimum value of the minimum value of the T should be equal to 4 pi r square K T by P. P is the heat of power. Thank you. Hello everyone. So we are given with a question which says a solid copper sphere having density rho and specific heat as C of radius r at an initial temperature of 200 Kelvin is suspended inside a chamber whose wall are at almost 0 Kelvin. The time required for the temperature of the sphere to drop to 100 Kelvin is. So we have been given with a scenario something like this in the chamber, which the wall of which is being maintained at 0 Kelvin. Sphere has been suspended whose initial temperature is 200 Kelvin. Alright, so we have to calculate that time when its temperature reduced to 100 Kelvin. So this case is a case of radiation, and for that we can use Stephen's Boltzmann law, or we can directly write Stephen's law. For in that we can write energy radiated per unit time is given by energy radiated uh, per unit time can be given as by the formula dq by let's write it as dq by dt, and that is equals to we can write it as sigma into a t raised to 4 minus of t naught 4, where t is the temperature of the sphere and T naught is the temperature of the chamber, that is at 0 Kelvin. So further if we can write dq can be written as in terms of specific heat capacity, the energy required is mc dt, and that's divided by dt, and that is equals to sigma a t raised to 4, because t naught is kept at 0 Kelvin, so the answer will be 0 for t naught. So now we can separate the variable and we can get the desired result. So after separating the variable we can write dt by t raised to 4 and integrating it. So from uh, when the temperature initially was at 200 Kelvin and we have to check the time at 100 Kelvin. So when temperature reaches to 100 Kelvin, that will be equals to sigma a divided by mc into dt. All right. So these all quantities are constant, so we can take it out as constant. And when time will start when the temperature was 200 Kelvin, and we have to calculate the time at which it becomes 100 Kelvin. So let's suppose that time to be as t. Now we can solve it further. This can be further written as sigma a divided by sigma into a divided by uh, let's write it as
here it would be, instead of mass, we can write it as density into volume into C, and here we will put a negative sign. Why? Because we know when the body's temperature, body is being heated, so it gets expanded. All right, but when it's cool, it gets contract. So here in the case, the temperature is reducing from 200 to 100 Kelvin, so the temperature is been reducing, so its volume will decrease. That's the reason we are putting a negative sign over here. I hope you have understood this. Now if we solve it further and put the limits, so after integration of this, we will get the answer as uh, 1 over 1 by 1 over 3 t cube, limit 200 to 100 Kelvin. All right, so, and here we can write it as minus of sigma, and here it is a minus sign. So minus of sigma into A can be written as 4 pi r square for sphere, that is area, and volume density can be written as rho. Volume can be written as 4 by 3 pi r cube into C, and here it would be T only, and we are interested in finding this value of T. So from here, if we solve it further, so we can see the value of 4 gets cancelled out, the value of pi gets cancelled out, 2 and 1 r is left, so we are left with minus of sigma into T divided by rho, and 3 will go up, so let's put it over here, and we are left with R and C. So this is what we are left with over here. So when here, from here we can also cancel out the negative sign. So and 1 by 3 can be taken out as common over here. So we are left with 1 over t cube, that is 100 cube, minus of 1 over 200 cube, and that is equals to this could be written as 3 sigma t divided by rho rc. Alright, so this can be solved as 8 minus 1 7, we can write it as 7 into 10 raised to 6 divided by that can be written as this can be written as 8 1s are 8, 8 into 10 raised to 12, and this comes out to be, this 3 will go here, 9 t sigma t divided by rho rc. Alright, solving it further, we will get the answer as T can be written as this could be as 7 by 8 into 10 raised to minus 6 into 1 by 9 sigma, and here it would be rho rc. So solving this value, we will get 9 by comes out to be 0.09, 10 raised to minus 6 rho rc by sigma. So this is the final time we are getting. So this much time it will take to reduce the temperature of a sphere from 200 to 100 Kelvin. So I hope you have understood the concept, and thank you for watching. हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी इस क्वेश्चन को गिवन है 2 स्फेयर्स. ठीक है, पहला स्फेयर है जिसका हमको रेडियस गिवन है 1 मीटर. ओके, और सेकंड स्फेयर है जिसका हमको रेडियस गिवन है 4 मीटर्स. ठीक है, और जो फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर है उसका टेम्परेचर वो है 4000 केल्विन, और सेकंड स्फेयर का टेम्परेचर है 2000 केल्विन. राइट, हमको क्या बोला गया है कि क्या पूछा गया है कि द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय द फर्स्ट स्फेयर इज ग्रेटर देन दैट बाय द सेकेंड. तो चेक करने के लिए कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड निकालेंगे, तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ. ठीक है, स्टेफन लॉ इसको बोलते हैं. ओके, इसकी वैल्यू होती है कि इसका एक्सप्रेशन होता है कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टेम्परेचर रेज़्ड टू द पावर 4 इंटू एरिया. ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ केस 1, इसको ले लेते हैं केस 2. ठीक है, तो अगर मैं निकालता हूँ E1, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इन केस ऑफ फर्स्ट स्फीयर. ठीक है, तो होगा सम सिग्मा इंटू टेम्परेचर उसका 4000 की पावर 4. ठीक है, इंटू एरिया. एरिया क्या होगा इसका 4 पाई
इंटू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम निकालेंगे E2 की वैल्यू। E2 की वैल्यू आएगी हमारे पास सिग्मा इंटू 2000 की पावर 4 इंटू 4 पाई इंटू 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो E1 की वैल्यू आएगी मेरे पास वो होगा समथिंग 1024 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 4 पाई, ठीक है। और E2 की वैल्यू आएगी मेरे पास 1024 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 4 पाई। तो यहाँ पे क्या है कि जो दोनों की एनर्जी रेडिएटेड आउट पर सेकेंड है वो इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब जो हमको यहाँ स्टेटमेंट गिवन था एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय द फर्स्ट फेज ग्रेटर देन दैट बाय सेकेंड, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो बेसिकली होगा फॉल्स। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक डबल पेन विंडो है जिसमें 2 ग्लास शीट्स हैं जिनका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और जो की थिकनेस है वो है 0.01 मीटर। और वो दोनों ही जो हमारी ग्लास शीट्स हैं वो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है 0.05 मीटर। और उन दोनों ही बीच में जो स्पेस है उसमें क्या है एयर है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टेडी स्टेट में जो हमारा रूम का ग्लास इंटरफेस है और जो बाहर की तरफ जो ग्लास है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। जो बाहर का ग्लास है वो है 27 डिग्री सेल्सियस पे और जो अंदर ग्लास है वो है क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि कितना हीट फ्लो होगा उसका रेट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। और हमें सेकंड पार्ट में पूछा है कि जो दूसरा इंटरफेस है बाहर की तरफ है उसका टेम्परेचर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें उसका एरिया गिवन है जो कि दोनों का इक्वल है, वो क्या है 1 मीटर स्क्वायर। और उसकी जो थिकनेस है टी वो क्या है T1 हमारा क्या है वो है 0.01 मीटर। और जो हमारा T2 क्या है जो बाहर की तरफ वाली हम जो विंडो है जो ग्लास शीट है उसका थिकनेस क्या है 0.05 मीटर। अब देखो हमें थर्मल कंडक्टिविटीज दे रखी है कि जो हमारा K1 है वो क्या है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन ये है। और जो हमारा K2 है एयर का वो क्या है 0.08 वाट पर मीटर पर केल्विन ये है। अब देखो हमें कि फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि हीट फ्लो का रेट क्या होगा। तो जो सपोज जो हमारा रेसिस्टेंस होता है उन दोनों का जो रेसिस्टेंस होगा थर्मल रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा वो हमारा होगा 2 इंटू थिकनेस ऑफ 1 K1 इंटू A1 ये होगा प्लस दूसरा क्या होगा T2 अपॉन K2 इंटू A2 ये हमारा क्या होगा रेसिस्टेंस होगा थर्मल रेसिस्टेंस। तो हमें जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमें यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा 2 इंटू हो जाएगा 0.01 अपॉन K1 क्या है वो है थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा 0.8 इंटू एरिया क्या है वो है 1 मीटर स्क्वायर प्लस T2 हमारा क्या है वह हमारा 0.05 अपॉन K2 हमारा क्या है 0.08 इंटू एरिया क्या है वो है 1 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा रेट होगा रेट जो हमारा रेसिस्टेंस होगा जो हमारा हीट एनर्जी को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 0.65 वाट पर वाट केल्विन। तो ये हमें मिल गया रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस है ये। अब देखते हैं हीट का जो करंट है वो क्या होगा हीट फ्लो क्या होगा वो होगा हमारा dq अपॉन dt। ये हमें क्या मिलेगा ये हमें मिलेगा डेल्टा टी अपॉन आर चेंजिंग टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। चेंजिंग टेम्परेचर क्या है वो है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस क्या है हमें 0.65। तो हमें जो हीट करंट मिलेगा वो क्या होगा 41.5 वाट। तो ये हो गया हमारा उसका हीट फ्लो का रेट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि टेम्परेचर क्या होंगे दोनों ही इंटरफेसेस के। तो देखो हम टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारा टेम्परेचर ये क्या है बी पार्ट है। तो जो टेम्परेचर होगा अंदर की तरफ जो हमारे ग्लास शीट है उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा T1 इक्वल टू 27 माइनस ये जगह dq अपॉन dt रेट इनटू ये क्या होगा रेजिस्टेंस T1 अपॉन K1 A1 ये होगा। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमें देखो यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस dq अपॉन dt क्या है वो है हमारा 41.5 इंटू ये हमारा T1। तो हमारे T1 की वैल्यू क्या है वो है हमें 0.01 अपॉन K1 क्या है वो है 0.8 इंटू ये है 0.8 और एरिया क्या 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 27 माइनस तो हमारा 0.52 और यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा
यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 26.48 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा अंदर वाली जो हमारी ग्लास शीट है उसका टेम्परेचर। अब देखो T2 फाइंड करते हैं। जो बाहर की तरफ जो हमारी शीट है हमारा, उसका क्या टेम्परेचर होगा। जो अंदर की तरफ हमारी शीट है उसका जो हमारा टेम्परेचर क्या होगा T2। तो हो जाएगा हमारा 0 प्लस dq अपॉन dt इंटू जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा T1 अपॉन K1 A1। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 0 प्लस, अब देखो ये क्या है, dq अपॉन dt T1 अपॉन K1 A1 की वैल्यू क्या थी, वो 0.52 थी, तो हो जाएगा 0.52। तो और जो T2 होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा 0.52 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये मिल गए दोनों ही टेम्परेचर इंटरफेसेस के। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसकी लेंथ 0.4 मीटर है। ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 0.4 मीटर, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 0.04 मीटर स्क्वायर। ये एक डिस्क के ऊपर रखा है कोएक्सियली, ठीक है। हमारे डिस्क का मास है 0.4 kg, ठीक है। इसका भी क्रॉस सेक्शन हमारे जो सिलेंडर का उसी के बराबर है, डिस्क का भी, ठीक है। जो हमारे सिलेंडर का अपर फेस है उसका टेम्परेचर हमने 400 केल्विन पे मेंटेन किया हुआ है कांस्टेंट, ठीक है। और डिस्क का टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, ठीक है। और हमारे सिलेंडर की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है और डिस्क के मटेरियल की स्पेसिफिक हीट दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा डिस्क के टेम्परेचर को 300 से 350 केल्विन पहुंचने में, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कहीं भी मतलब कोई हीट लॉस नहीं हो रहा बाकी। तो क्वेश्चन क्या है कि इस एंड का टेम्परेचर 400 केल्विन है और डिस्क का टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो इनके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ से हीट कंडक्ट शुरू होगी, यहाँ से हीट करंट जाएगा कुछ H, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा डिस्क का। तो 300 से 350 केल्विन होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं H क्या होगा हमारा डेल्टा टी बाई आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डेल्टा टी है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे डिस्क का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा डेल्टा टी की वैल्यू कम होने लगेगी। तो हम ये फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो जो डिस्क का टेम्परेचर बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, Q से। Q इक्वल टू डिस्क का मास, डिस्क की स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम dq बाई dt देखें तो क्या आएगा, m इंटू सी dt बाई dt, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, h के, ठीक है। h के हमारा डेल्टा टी बाई आर। तो इसमें हमें डेल्टा टी की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू लिखेंगे वो 400 माइनस, ये जो 400 माइनस कोई भी टी मान लेंगे क्योंकि ये वेरी करेगा टाइम टू टाइम। तो हमने कोई टी मान लिया, बाकी आर की जगह हम एल बाई के लिखेंगे। तो एल ये के इधर, ठीक है। और इसको हम इसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो बाकी सब वैल्यू इधर लाएंगे, टी वाले टर्म को टी के साथ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, डी टी अपॉन 400 माइनस टी, ठीक है, इज इक्वल टू इधर आएगा के ए अपॉन एम इंटू सी इंटू एल और डी टी टाइम, ठीक है। अब अगर हम इन सब की वैल्यूज रखें तो यहाँ से हमारा टाइम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये टी वेरी कर रहा था बहुत छोटी छोटी वैल्यूज के लिए। तो एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए और एग्जैक्ट टेम्परेचर निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से टी की कुछ वैल्यू के लिए जो हमें चाहिए हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इनकी वैल्यूज रखते हैं सबकी, इन सब टर्म्स की। तो के की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो 10 इंटू एरिया दिया है हमें 0.04, ठीक है। मास दिया है हमारा डिस्क का 0.4, ठीक है। और डिस्क का जो सी दिया है वो दिया है 600, ठीक है। और एल दिया है हमें सिलेंडर का 0.4,
ठीक है, और ये dt, और इसके इक्वल क्या है, d कैपिटल T अपॉन 400 माइनस t। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है, इस सब की वैल्यू आती है 1/240 dt इज इक्वल टू dt अपॉन 400 माइनस t। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इधर सिर्फ dt रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से टाइम आएगा, बाकी सब उधर ले जाते हैं, तो 240 कांस्टेंट और ये dt अपॉन 400 माइनस t। तो हम कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं कि कहाँ तक हमें पहुँचाना है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है 350 तक, तो हम लिमिट रखेंगे अपनी 300 से 350। ठीक है, तो जब हम इसके इंटीग्रेट करेंगे वो वैल्यू होगी टाइम की, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, टाइम की वैल्यू आती है 166 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।